نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. محترم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم لوگ نون قطنی کا بیان پڑھیں گے اور آج کا درس یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ اکثر و بیشتر لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس درس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اس غلطی سے بچ سکیں. تو چلیے درس کو شروع کرتے ہیں. نون قطنی کا بیان. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں. اگر حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون ہو تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. اکثر و بیشتر جب آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کہیں کسی جگہ الف کے نیچے نون بنا ہوا ہوتا ہے تو اسی کو نون قطنی کہتے ہیں. اگر حمزہ کے نیچے اور الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے. تو اگر حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون ہو تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں. نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو کبھی بھی زبر یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ دیکھیے یہاں پر نون قطنی ہے. اس کے دیکھیے یہ اس طرح اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے قرآن میں کئی جگہ پر آپ کو اس طرح ملے گا. نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے. اس طرح آپ کو قرآن کے اندر لکھا ہوا ملے گا. اسی کو نون قطنی کہتے ہیں. جب نون قطنی پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جیسے یہاں پر دیکھیے یہ نوح نب نہو ہے. نوح نب نہو. تو کہا جا رہا ہے کہ جب نون قطنی پڑھا جاتا ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے نون کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اس کے اوپر کا حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے. یہ نون کے اوپر جو الف ہے، الف کے اوپر کیونکہ یہ نیچے زیر ہے اسی لیے اس کو حمزہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو نوح ابنہو نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ نوح نبنہو. یہ حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے مثال ہے نوح نبنہو یومئذ الحق. یومئذ الحق. الحق نہیں پڑھیں گے، الحق. اگر ہم اسے کیا کر رہے ہیں؟ ملا کر پڑھ رہے ہیں، یعنی اگر اس پر ہم وقف نہیں کر رہے ہیں، ٹھہر نہیں رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ نوح نبنہو یومئذ الحق. نون پڑھیں گے. اب اس کے قاعدے ہیں جو میں نے 1 2 3 4 5 6 لکھا ہے میں نے. یہ 6 قاعدے ہیں. یہ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ آیت وقف پر ملا کر پڑھا جائے تو وقف سے پہلے الف اور نون کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. اب دیکھیے کہا آیت وقف پر ملا کر پڑھا جائے. یہ جیم ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جو عبارت ہوتی ہے اس کے اوپر کہیں کہیں یہ جیم لکھا ہوا رہتا ہے، کہیں تو لکھا ہوا رہتا ہے، تو وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ٹھہرنا نہیں چاہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ آیت وقف پر ملا کر پڑھا جائے. یعنی وہاں پر آپ کو اگر نہیں ٹھہرنا ہے تو وقف سے پہلے، یعنی جو ٹھہرنے سے پہلے جو ہے یہ والے الف، یہ خیرن میں جو الف ہے یہ الف اور نون کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جاتے ہیں. یہ نون کے اوپر جو یہ حمزہ ہے، یہ جو الف کے شکل میں یہ جو حمزہ ہے یہ اور یہ دونوں نہیں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو ملا کر کے اگر پڑھنا ہے تو یہ دونوں الف آپ نہیں پڑھیں گے. یہاں کا الف اور یہاں کا حمزہ نہیں پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے آپ؟ خیرن الوصیۃ. خیرن الوصیۃ. اور اگر آپ رک جائیں گے تو خیرن الوصیۃ ہو جائے گا. جہاں رکیں گے وہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا. یہ آگے بتایا جائے گا آپ لوگوں کو. اگر نون قطنی سے پہلے الف ہے، نون قطنی سے پہلے الف ہے
تو वो अलिफ और नून कुतनी का हमजा दोनों भी नहीं पढ़े जाते हैं। अब देखिए, अगर नून कुतनी से पहले अलिफ है, ये वाला नून कुतनी है, उससे पहले क्या है, ये अलिफ है, ठीक है, और नून कुतनी का हमजा, ये नून कुतनी का हमजा दोनों भी नहीं पढ़े जाते हैं अगर नून कुतनी से पहले का अलिफ है। एक तो कायदा दिया कि अगर आपको मिला करके पढ़ना है, थोड़ा सा फर्क है, एक मिला कर पढ़ना है और एक नून कुतनी से पहले अलिफ है। तो ये जो अलिफ है, ये वाला अलिफ और ये वाला अलिफ दोनों आपको नहीं पढ़ना है। जैसे आप पढ़ेंगे कैसे, शीबनिस समाउ, यहाँ आयत है, ये आयत है आपको वो, तो यहाँ पर आपको अगर नहीं ठहरना है तो आप किस तरह पढ़ेंगे, शीबनिस समाउ, शीबनिस समा। अब ये देखिए, ये अलिफ, ये जो बा के बाद जो अलिफ है ये आप नहीं पढ़ेंगे, और नून के ऊपर ये जो हमजा है ये अलिफ की शक्ल में, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। अगर वक्फ कर, तीसरा क्या देखिए, अगर वक्फ करके हमजा, ये तो दोनों था कि आपको मिला करके पढ़ना है। तीसरा क्या है, अगर वक्फ करके हमजा लाम से आयत शुरू करें तो नूने कुतनी पढ़ा नहीं जाता, नूने कुतनी के ऊपर का हमजा जबर के साथ पढ़ा जाता है। अब देखिए, अगर आयत पर अगर आपको वक्फ करना है, ठहरना है, तो फिर आपको उस तरह, किस तरह आपको पढ़ना है। जैसे अगर वक्फ करके हमजा लाम से आयत शुरू हो, यानी आप ठहर गए, जैसे मान लीजिए यहाँ आप ठहर गए, ये आयत है, आप ठहर गए, हमजा लाम से आयत शुरू करें तो नूने कुतनी पढ़ा नहीं जाता है। आप जब ठहरेंगे तो वहां पर आपका यानी नून जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा, तो नूने कुतनी के ऊपर का हमजा जबर के साथ पढ़ा जाता है। तो नूने कुतनी के ऊपर जो, ये देखिए, ये नूने कुतनी के ऊपर जो ये हमजा है इसको पढ़ा जाएगा। जैसे हम मिसाल के तौर पर ले लें, यहाँ देखिए, खैरा अल वसीयतु, तो यह नून के नीचे जो जेर है ये हम नहीं पढ़ेंगे, जैसा मैंने मिसाल में दिया हुआ है, अल्लज़ीना हम पढ़ेंगे, यहाँ आयत है। अगर आप इससे पहले कोई भी है वर्ड है, आप ठहर गए, तो यहाँ आप किस तरह पढ़ेंगे, निल्लज़ीना नहीं पढ़ेंगे, अल्लज़ीना पढ़ेंगे, अल, ये नून नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह ये नून नहीं पढ़ेंगे, अस्समाउ, ठहर गए आप, वक्फ कर गए, वक्फ का मतलब आप ठहर गए, तो आप अस्समाउ पढ़ेंगे, निस्समाउ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको मिला करके पढ़ना है तो फिर आप वहाँ निस्समाउ पढ़ करके आप निकल जाएं, लेकिन आप अगर ठहर गए तो वहाँ पर आप कभी भी नून को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ीना पढ़ेंगे, अस्समाउ पढ़ेंगे। उसी तरह मुरीब, मुरीब, उसके बाद अल्लज़ी, मुरीब अल्लज़ी, यहाँ पर आप ठहर गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अल्लज़ी, निल्लज़ी नहीं पढ़ेंगे आप। इसी तरह चौथा कायदा क्या है, अगर वक्फ करने के बाद, ठहर जाने के बाद आयत सिर्फ हमजा से शुरू हुई है, यानी हमजा से शुरू हुई है, ठहर गए, उसके बाद हमजा से शुरू हुई है, तो आयत के शुरू से तीसरे हर्फ को देखें। तीसरे हर्फ जैसे देखिए यहाँ है 1 2 3, तीसरे हर्फ क्या है, ये हा है, ठीक है। इस मिसाल को आप ज़हन में रखिए, इस हर्फ को मिसाल में आप ज़हन में रखिए। अगर वक्फ करने के बाद आप ठहर गए, आयत सिर्फ हमजा से शुरू हो, या यहाँ पर आप हमजा से शुरू हो, तो आयत के शुरू से तीसरे हर्फ को देखें, इस तीसरे वाले हर्फ को देखें, ये वाले हर्फ को, ये वाले हर्फ। अगर तीसरे हर्फ को जबर या जेर हो, इस वाले तीसरे 1 2 3 यानी 1 2 3 वाला हर्फ, अगर ये तीसरा वाला हर्फ जबर या जेर हो तो दोनों हालतों में हमजा जेर से शुरू करेंगे। तो जब अगर ये तीसरा वाला वर्ड अगर जबर या जेर हो तो यहाँ हम किस तरह पढ़ेंगे, जेर के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इज़हब, इज़हब,
जैसे इज़हब से इज़हब से इज़हब, ठीक है, इज़हब से इज़हब। और अगर मिलाकर अगर आप पढ़ना है तो निज़हब हो जाएगा। लेकिन अगर आप ठहर रहे हैं, वफ कर रहे हैं, तो वहां पर वफ करने के बाद फिर आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इज़हब पढ़ेंगे, निज़हब नहीं पढ़ेंगे। हालांकि नून के नीचे ये ज़ेर लिखा हुआ रहेगा कुरान में, तो आपको निज़हब नहीं पढ़ना है, इज़हब पढ़ना है। और कभी कभी किसी कुरान में अलिफ पर कुछ भी नहीं, यानी हमजा तो ज़बर ज़ेर पेश रहता ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप ठहर गए और ठहरने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये अज़हब है या इज़हब है या उज़हब है? तो यही तरीका बताया गया है कि तीसरे वर्ड को देखिए, तीसरे वाले वर्ड को देखिए। अगर ये ज़बर ज़ेर है तो यहाँ ज़ेर आएगा, यहाँ ज़ेर आएगा। अगर तीसरा वाला वर्ड ज़बर या ज़ेर है तो यहाँ ज़ेर आएगा। जैसे इज़हब से इज़हब, यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको किस तरह पढ़ना है? नून के नीचे ज़ेर भी रहेगा, तो यहाँ आपको इज़हब ही पढ़ना, इज़हब। इस्तिकबारन से निस्तिकबारन है, मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे तो निस्तिकबारन। और अगर आपको मिलाकर नहीं पढ़ना है, ठहर जा रहे हैं आप आयत पर, तो फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इस्तिकबारन। और अगर तीसरे हर्फ पर असली पेश हो तो हमजा भी पेश ही से शुरू करेंगे। अब देखिए तीसरा वर्ड, इसको देखिए। पहले तो कायदा ये था, ये वाला कायदा ये था कि अगर तीसरा वर्ड ज़बर ज़ेर हो तो यहाँ से ज़ेर से शुरू करेंगे। और अगर तीसरा वर्ड पेश हो, असली पेश मतलब वो पेश जो कभी गिरे ना, तो 1 2 3 1 2 3 तीसरे नंबर पे ता पे देखिए पेश है ये। तो अगर तीसरा वर्ड ये पेश हो तो पहला वाला जो अलिफ है, ये वर्ड है, इसको हम पेश के साथ पढ़ेंगे। जैसे अगर आप ये लिखें उक्तुलू से उक्तुलू, नून के नीचे ज़ेर है, तो आपको वहां पढ़ना ही नहीं है, आपको उक्तुलू ही पढ़ेंगे। अगर आप वफ कर दिए, ठहर गए, आयत पर ठहर गए, तो दूसरी आयत जब शुरू होगी तो यहाँ पर आपको किस तरह पढ़ना है? उक्तुलू पढ़ना है, निक्तुलू नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं तो वहां पर फिर आप निक्तुलू पढ़ेंगे। यहाँ बात जो हो रही है, ये बात ठहरने की बात हो रही है कि आप आयत पर ठहर गए तो दूसरी आयत, अब नून नीचे लिखा हुआ है, कहीं नून नीचे नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि किस तरह पढ़ना है आपको। तो तीसरा वर्ड देखिए, अगर ज़बर ज़ेर आ रहा है तो अलिफ के नीचे ज़ेर लगा दीजिए, और अगर तीसरा वर्ड पेश आ रहा है तो अलिफ पर पेश लगा दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इसको आसान और कर दिया आपको। जैसे इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। अब देखिए ये आयत है, यहाँ आयत है। अगर आप यहाँ पर ठहर गए, समझिएगा इसे, इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, यहाँ ठहर गए। अब आपको यहाँ पर किस तरह पढ़ना है? यहाँ अलिफ के नीचे ये नून है, और किसी किसी कुरान में तो नून लिखा हुआ भी नहीं रहता है, तो आपको यहाँ पर किस तरह पढ़ना है? इक्तुलू पढ़ेंगे या उक्तुलू पढ़ेंगे? तो मैंने एक वही कायदा बताया था कि अगर तीसरा वर्ड देखिए 1 2 3, यानी तीसरा वर्ड क्या है? ता पर अगर पेश है तो अलिफ पर आपको क्या लगाना है? पेश लगाना है। तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन उक्तुलू यूसुफा, उक्तुलू यूसुफा। वफ़ ना करे तो देखिए, वफ़ ना करे तो आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? निक्तुलू। जैसे इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीन निक्तुलू, किस तरह पढ़ेंगे? नहीं, मुबीनी निक्तुलू। मुबीनी, एक ज़ेर, यहाँ पर 2 ज़ेर है तो एक ज़ेर गिर जाएगा, मुबीनी, उसके बाद होगा निक्तुलू। इन्न अबाना लफी ज़लालिम मुबीनी निक्तुलू। अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं
यानी वक्फ नहीं कर रहे हैं, ठहर नहीं रहे हैं। और अगर वक्फ करेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे, मुबीन उक़्तुलू, यानी इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ, मुबीन उक़्तुलू यूसुफ, क्योंकि तीसरा वर्ड क्या है, ता में क्या है, ये पेश है। वक्फ करें तो मुबीन उक़्तुलू, मिलाकर पढ़ने से, पांचवा कहता है क्या, मिलाकर पढ़ने से नूने कुतनी से पहले का अलिफ और नूने कुतनी के ऊपर का हमजा दोनों भी पढ़े नहीं जाते हैं। यानी मिलाकर पढ़ने से, अगर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं तो नूने कुतनी से पहले का अलिफ, नूने कुतनी से पहले का अलिफ क्या है, ये वाला अलिफ, ये देखिए ये वाला अलिफ, नूने कुतनी से पहले का अलिफ और नूने कुतनी के ऊपर का हमजा, ये नूने कुतनी के ऊपर, ठीक है, ये वाला हमजा, ऊपर का हमजा दोनों भी पढ़े नहीं जाते हैं, सिर्फ नूने कुतनी पढ़ा जाता है। ठीक है, नूने कुतनी को पढ़ा जाता है और नूने कुतनी से पहले जो तनवीन है उसे सिर्फ एक ज़बर और एक पेश से पढ़ेंगे, उसे सिर्फ एक ज़बर और एक पेश से पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा और ये नून के ऊपर जो हमजा है ये भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो नूने कुतनी के ऊपर का हमजा, ये हमजा और नूने कुतनी से पहले का अलिफ, ये वाला अलिफ, दोनों नहीं पढ़ाएंगे, दोनों को आपको पढ़ना नहीं है। बल्कि नूने कुतनी से पहले जो तनवीन है, अब ये जो तनवीन है ये दो ज़बर है तो एक ज़बर हो जाएगा, अगर दो ज़ेर होता तो एक ज़ेर हो जाता, और अगर दो पेश होता तो एक पेश होता। कब, जब आपको मिलाकर पढ़ना है, वक्फ नहीं करना है, ठहरना नहीं है। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये दो ज़बर एक ज़बर हो जाएगा, दो ज़ेर होता तो एक ज़ेर हो जाता, दो पेश होता तो एक पेश हो जाता। अब जैसे इल्ला, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इल्ला नुफूरा, इल्ला नुफूरा। अब यहां पर आप ठहर गए, इल्ला नुफूरा, आप ठहर गए। अब उसके बाद आपको ये किस तरह पढ़ना है, निस्तिकबारन पढ़ेंगे या इस्तिकबारन पढ़ेंगे, इस्तिकबारन पढ़ेंगे, क्योंकि आप वहां ठहर गए, फिर आप नून को नहीं पढ़ना है। ये पहले आप समझ जाइए, जहां से आप अगर वक्फ किए ठहर गए, उसके बाद आपको नून तो पढ़ना ही नहीं है, फिर वो हमजा पढ़ा जाएगा या कोई भी वर्ड होगा वो पढ़ा जाएगा। ठीक है, और अगर मिला के पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए उस नून को पढ़ना ही पढ़ना है, जो नून छोटा सा नीचे लिखा हुआ रहता है। अब देखिए इल्ला नुफूरा इस्तिक, अब ये इस्तिकबारन हमने कैसे जाना कि ये इस्तिकबारन है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, क्योंकि तीसरा वर्ड देखिए 1 2 3, तीसरा वर्ड क्या है, ता है, ता के नीचे क्या है, ज़ेर है। तो जब ये ज़ेर है इसीलिए पहला वर्ड क्या होगा, वो ज़ेर होगा। अगर यही पेश होता तो यहाँ पर पेश हो जाता, उस्तुकबारन पढ़ते हैं, लेकिन वो तो यहाँ पर ज़ेर है, यहाँ पर क्या है, ज़ेर है। इसी वजह से इस कायदे के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, इस्तिकबारन फिल अरबी। अब देखिए वक्फ ना करें तो किस तरह पढ़ेंगे, अगर आप नहीं ठहर रहे हैं, ठीक है, नहीं ठहर रहे तो नुफूर, नुफूरा निस्तिकबारन, इल्ला नुफूरा निस्तिकबारन, यानी आप नहीं ठहर रहे हैं, मिलाकर पढ़ रहे हैं तो नुफूरा निस्तिकबारन पढ़ेंगे। अगर वक्फ करेंगे तो नुफूरा, नुफूरा, अगर आप वक्फ करेंगे तो नुफूरा इस्तिकबारन पढ़ेंगे। नून आपको वहां पर पढ़ना नहीं है, मैंने बताया था कि जहां से आप अगर वक्फ करेंगे तो फिर उसके बाद वाला नून आपको पढ़ना नहीं है। तो आप क्या पढ़ेंगे, नुफूरा इस्तिकबारन। यहाँ पर देखिए अलिफ के नीचे ज़ेर है, क्योंकि ता तीसरा वर्ड क्या है, ये ज़ेर है, तो इसलिए यहाँ पर ज़ेर होगा। मिलाकर पढ़ने से खाली हमजा पढ़ा नहीं जाता। अब अगर आप मिलाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, रुक नहीं रहे हैं, मिलाकर पढ़ने से खाली हमजा पढ़ा नहीं जाता। जो नून के ऊपर वाला जो हमजा है, ये वाला,
یہ والا جو حمزہ ہے یہ پڑھا نہیں جاتا. وقف کرنے کے بعد اگلی آیت خالی حمزہ سے شروع ہو. اب دیکھیے وقف کرنے کے بعد اگر آپ ٹھہر گئے اگلی آیت خالی حمزہ سے شروع ہو, یعنی حمزہ ہے اس پر کچھ بھی نون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, اور تیسرے حرف کو زیر ہو یا زبر ہو تو خالی حمزہ زیر سے پڑھا جائے گا. یہ تو وہی اوپر والا کچھ کا وہی قاعدہ ہے جو کہ اگر ابھی یہاں پر نون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں ایسا بھی ہے کہ نون نہیں ہے, جیسے آپ کی مثال میں آپ کو میں بتاؤں گا. اگر نون نہیں ہے تو آپ کو وہی تیسرا ورڈ دیکھنا ہے کہ اگر تیسرے حرف کو زیر یا زبر ہو تو خالی حمزہ زیر سے پڑھا جائے گا. تو جو حمزہ ہوگا, جو شروع والا ورڈ ہوگا, پہلا والا ورڈ ہوگا, وہ کیا ہوگا, زیر سے پڑھا جائے گا. اور اگر تیسرے حرف پر اصلی پیش ہو تو پیش پڑھا جائے گا, پیش کو پڑھیں گے. اگر تیسرا ورڈ پیش ہے تو پہلا ورڈ بھی آپ کو پیش پڑھنا ہے. جیسے قرآن کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے, دیکھیے یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ یہاں ٹھہر گئے, مطمئنہ. اب دیکھیے الف پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ قرآن میں دیکھیں گے, قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے, الف پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ آپ یہاں پر ارجعی پڑھیں گے یا ارجعی پڑھیں گے, کس طرح پتہ لگائیں گے؟ تو یہاں پر یہی بتایا کہ تیسرے ورڈ کو دیکھیے, اس تیسرے والے ورڈ کو دیکھیے, 1 2 3. تیسرے والا ورڈ کیا ہے, جیم کے نیچے زیر ہے, تو آپ یہاں پر زیر لگائیں گے. پہلے والے ورڈ میں کیا لگائیں گے, زیر لگائیں گے. تو اس کو آپ کیسے پڑھیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. رک گئے. اس کے بعد آپ کو پڑھیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی, آپ کو خود سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا, ارجعی ہوگا, کیونکہ تیسرا ورڈ کیا ہے, زیر ہے. اور اگر آپ کو ملا کر کے پڑھنا ہے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر نون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, نون وغیرہ نہیں ہے. تو اتنا ہی یہ قاعدہ تھا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وقف کا قاعدہ میں بتاؤں گا, اور وہ آخری قاعدہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ مشق کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعده قوما صالحین. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف.
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين